I have the privilege in welcoming in our midst today Dr. Mahesh Sharma, Mr. Costa, Dr. P.C. Bhardwaj to take part in this walk which iCare Hospital has organized to combat glaucoma. Glaucoma is a silent disease, but it kills, and our endeavors are always there to fight this disease, to nick it in time, and prevent irreversible blindness. We are grateful to all our esteemed guests, members of the media, Only Health, our media partner, and all our esteemed guests who are present here. Your presence here has encouraged us and will motivate us further in our endeavors to fight this dreaded disease. I would now request Dr. Sushil Chaudhary to please address the gathering. I am really grateful to Dr. Mahesh Sharma and all the people who have gathered here, and we have been trying that we should be able to make an impression when we walk, and we should have a large number of people coming with us. And thank you very much for joining us for the walk today. And this was, as Lokaji has said, is there to be able to spread awareness about this disease, where you never come to know that you have a disease till it's very late. Because all the vision you lose due to glaucoma ultimately never comes back. It is unlike cataract, where you have lost vision, you do a cataract surgery and you become alright. Your vision comes in fully. So I would request, because there are no symptoms, I request all of us who is above 40 years of age to go through a comprehensive checkup for this disease so that we can diagnose it in time and take preventive measures so that it doesn't get worse, so that you can have a working eyesight throughout your life. It should be a routine checkup for everybody who is above 40, because it will take you about an hour and a half, and we have also opened next week from 12th to 17th as a free eye checkup for glaucoma between 2 and 5 every day for a week. So I request all of you to take this opportunity to come and get yourself examined so that we can help you to stop the disease at the right moment. Thank you very much. To give a small talk on glaucoma. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये ग्लोकोमा वॉक को सक्सेस बनाने के लिए। आइडिया इस वॉक का यही था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस लाई जाए ग्लोकोमा डिजीज के बारे में। आई मेक माई टॉक इन इंग्लिश सो दैट इट्स ऑफ बेनिफिट टू ऑल ऑफ अस। I won't take too much time. I think the important message has been given to all that unfortunately glaucoma is a silent disease. It's a disease that does not give any symptomatology and can lead to blindness slowly if not diagnosed and treated in time. But we should not live in fear of glaucoma, because if you diagnose it in time and treat it well, we all continue to see as well as a normal person does. So the idea is that we need to understand it and make sure that we as responsible people, responsible citizens, to look after your own health, know that it's important to have a good examination every year after the age of 40 by a trained, qualified eye surgeon. I will just take you through a very short presentation. Basically, glaucoma week celebrations are being conducted worldwide. ये जो इनिशिएशन लिया गया है, ये वर्ल्ड ग्लोकोमा एसोसिएशन ने लिया है, जिसमें सारी कंट्रीज की ग्लोकोमा सोसाइटीज को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि वो हर साल इस वीक में अवेयरनेस कैंपेन्स करें, वॉक्स करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, जगह जगह जाके टॉक्स दें, और ऑल्सो स्क्रीनिंग करें, लोगों के लिए फ्री स्क्रीनिंग या जो भी अवेयरनेस लाएं और स्क्रीनिंग करें लोगों को। Also, as I just said, that the idea is we should save ourselves from such silent diseases. I'm sure there are many more, like the diabetes and all, there are many more.
And this is just about glaucoma, the small initiative. And I think the future is हमको बाकी सब साइलेंट डिजीजेस के बारे में, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो आईज हो, चाहे वो हार्ट हो, उसके बारे में अवेयरनेस लाना चाहिए. I think I'll go through this. We know it's a very common disease, and it is almost second most common cause of blindness in the world. There are almost 74 million people worldwide who are affected by the disease, and in our country, in India, 12 million लोग already इस बीमारी से जो है सफर कर रहे हैं. जनरली आंख के अंदर क्या रहता है? आंख एक गुब्बारे की तरह है जिसके अंदर किसी प्रकार का फ्लूइड चलते रहता है. किसी भी चीज में हवा या फ्लूइड चलती है तो उसका प्रेशर बढ़ता है. जैसे हमारी रगों में खून दौड़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर है. गुब्बारे में हवा भरते हैं, कितना टाइट है, वो गुब्बारे का प्रेशर है. इसी प्रकार आंख के अंदर जो ये फ्लूइड है, कहीं बन रहा है, कहीं से बाहर जा रहा है, वो एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है. नॉर्मल प्रेशर अगर है तो हमारी आंख अच्छे से काम कर रही है, पर अगर ये प्रेशर बढ़ता है तो हमारे नस को, जो आंख को ब्रेन से कनेक्ट करती है, उसमें धीरे धीरे दबाव पड़ने से डैमेज होने लगता है. इस नस को अगर दबाव पड़ने से डैमेज होने लगे तो क्या होता है? शुरुआत में हमारा दायरा, तो अगर ये प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा? तो ये होता है कि हमारी ये नस की फाइबर्स को कम होने के कारण हमारा जो दायरा है वो छोटा होने लगता है. जैसे कि आप बाहर मैदान में गए, आपको 50 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अगर 50 की जगह कल को 40 या 45 दिखाई देने लगेंगे, आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है. इसलिए हमको इसका एहसास नहीं होता है. धीरे धीरे यही दायरा अगर ज्यादा छोटा होने लगे तब जाके हमको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है. पर अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी देर हो जाती है, क्योंकि ग्लाउकोमा हम रिवर्स नहीं कर सकते. एक बार जो डैमेज हो गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, ना सर्जरी से, ना मेडिकेशन से, ना लेजर से. किन लोगों को ग्लाउकोमा हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो ग्लाउकोमा होने का चांस थोड़ा बढ़ा देता है. जैसे फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारे परिवार में किसी को प्रॉब्लम होती है, ग्लाउकोमा है, तो चांसेस हमारे को पास होने के थोड़े बढ़ जाते हैं. अगर हमारी एज 40 इयर्स से ज्यादा है तो एज रिलेटेड डिजीज भी इसको माना जाता है. दैट मींस इट्स वेरी कॉमन इन एनीबॉडी अबव द एज ऑफ 40. जिन लोगों को कम उम्र से माइनस या प्लस का ज्यादा नंबर रहा हो, उन लोगों में भी ग्लाउकोमा होने का चांस थोड़ा ज्यादा हो जाता है. अगर आप किसी बीमारी के चलते स्टीरॉइड्स गोली खाते हैं, या अपनी स्किन पे स्टीरॉइड लगाते हैं, या अपनी आंखों में स्टीरॉइड डालते हैं, तो उससे भी ग्लाउकोमा होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है. अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, जो आजकल बहुत आम तरीके में हम देखते हैं कि लोगों में देखी जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लाउकोमा का रिस्क थोड़ा उसमें बढ़ जाता है. ये नहीं कि हर इंसान को जिसको डायबिटीज होगा उसको ग्लाउकोमा हो जाएगा, नहीं, लेकिन रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है. अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो भी जो है हमारा ग्लाउकोमा के रिस्क के, नर्व डैमेज की चांसेस को बढ़ा देता है. इंजरी, अगर कभी बचपन में या किसी कारण आंख में कोई ब्लंट गेंद से, मुक्के से अगर इंजरी या इवन पेनिट्रेटिंग इंजरी कभी हुई हो, तब भी ग्लाउकोमा का चांस बढ़ जाता है. इस जगह पे मैं 1 मिनट रुकूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ऑफन ऐसे होता है, हमारे यहाँ पे चोट लग गई, गेंद लग गई, पानी का गुब्बारा लग गया, थोड़ी देर लाल हुई, हमको लगा ठीक हो गया, उसके बाद सब ठीक दिखाई दे रहा है, तो हम कभी भी उसको दिखाने की जरूरत नहीं समझते हैं. अनफॉर्चुनेटली आजकल तो इंटरनेट हमें इतना इन्फॉर्मेशन देता है. आप सब लोग यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप देख पाएंगे कि कितना इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमारे को इंटरनेट पे मिलता है. मेरी एक जो प्रेजेंटेशन दी है आदि इंटरनेट के द्वारा बनाई गई होगी. तो अगर आप देखेंगे कि जो ब्लंट इंजरी होती है आंख में, 10 साल तक उसके बाद रिस्क ग्लाउकोमा का बना रहता है. तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये अवेयरनेस आपको जरूर होनी चाहिए कि आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, कभी किसी को भी अगर ब्लंट इंजरी हुई है, हर साल एक बार आप अपनी आईज का पूरा एग्जामिनेशन जरूर कराएं, और डॉक्टर को ये जरूर हिस्ट्री दे कि बचपन में या 5 साल पहले या 5 महीने पहले चोट आंख में लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ऑल्सो लुक फॉर अ पर्टिकुलर चेंज इन द आई. वी लुक फॉर जो पानी के चलने का रास्ता आंख में रहता है, उसके अंदर फटाव आ जाता है, देयर इज अ इट्स कॉल्ड एंगल रिसेशन, वो हमें जरूर देखना है. अगर वो है तो ग्लाउकोमा का चांस होना काफी ज्यादा हाई हो जाता है. देन हार्ट प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है उन लोगों में भी ग्लाउकोमा होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है. बट मेजर रिस्क फैक्टर्स फैमिली हिस्ट्री, एज अबव 40, इंजरी टू द आई एंड स्टीरॉइड्स. अदर्स जो है वो थोड़ा रिस्क बढ़ाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बार बार आप देख रहे हैं कि सब लोग बता रहे हैं, स्नीक पीक ऑफ लाइफ, आप बैनर देखेंगे, पोस्टर देखेंगे, सब में एक ही मैसेज जो है बार बार दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर 80% लोगों में कोई सिम्टोमेटोलॉजी ग्लाउकोमा की नहीं होती टिल द एंड स्टेज ऑफ द डिजीज, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो. तो इसलिए हमारी आंखों को कोई दिक्कत नहीं है ये सोचकर हम ग्लाउकोमा के बारे में या नॉर्मल एज रिलेटेड चेंजेस के बारे में ना सोचें, इज रॉन्ग.
make sure that you go to a doctor and have yourselves checked and ask, मेरी आंखें ठीक है, ग्लोकोमा में कोई डाउट तो नहीं लग रहा है, you must ask for it. बहुत रेयरली जो 20% बाकी के केसेस हैं, उनमें कई बार किस प्रकार के सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं, वो है रोशनी कम होना या रोशनी में हमें दायरा कम होना. कई बार रेयरली अगर प्रेशर आपका एकाएक बढ़ जाए, जो एक क्लोज एंगल डिजीज में देखा जाता है, जिसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. और अगर एकाएक प्रेशर नॉर्मल 10 से 40 हो जाए तो हमारी आंख में दर्द हो सकती है, आंख लाल हो सकती है. लाइट को देखने पर लाइट के आसपास हमें कलर्ड येलोज दिखाई दे सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी लग सकती है. ये सब सिम्टोमेटोलॉजी रेयर है, पर अगर ऐसा हो तो ये इमरजेंसी है, आपको तुरंत आई डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, द नियरेस्ट डॉक्टर टू यू. अगर आपकी 40 साल की उम्र के बाद बहुत जल्दी चश्मा बदलना है, कुछ देर तक तो बदलता ही है, 40 से लेकर 50 तक के बीच में नजदीक का चश्मा थोड़ा बदलता है, लेकिन हर 6 महीने में नहीं. अगर बहुत जल्दी आपके चश्मे के अंदर बदलाव आ रहा है तो भी एक कारण है कि आप अपनी आंख को ग्लोकोमा के लिए स्क्रीन जरूर कराएं. Yeah, so I just finished fast. I think Dr. Sabha has to go. The most common type is open angle and angle closure. बाकी सब रेयर होता है. और जैसे कि मैंने बताया कि इम्पोर्टेंस इज वी मस्ट गेट आवरसेल्व्स स्क्रीन फॉर इट. बच्चों में भी ग्लोकोमा हो सकता है, लेकिन लेस देन 2%. सो और बच्चों में अगर प्रॉब्लम होगी तो इतनी प्रोमिनेंट होती है कि पेरेंट्स बच्चे को तुरंत ले ही आएंगे. तो अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द एज रिलेटेड प्रॉब्लम. अच्छा, it's like this, Dr. Mahesh Sharma has to go early. So I would request him to say a few words before he goes. Not at all, not at all. That is. We salute Almighty God for giving us life, and of course vision is a part of that. And if God makes us partner or gives us a dedicated responsibility to give a part of life, a vision or anything, let's salute that great person also. Let's give a big salute to the philanthropic work and dedicated work, sincere and honest, genuine work being done by Dr. Sushil Chaudhary, Mrs. Chaudhary, who happened to be my wife, teacher also, and all eye care team members. The real genuine work you are doing to the society and to the humanity. We always salute to the giver. We may have sympathy with the beggar. Maybe we give some 100 rupees note to a beggar, but we don't salute him. And we, the team members, the team leaders at the eye care, God has given this responsibility of being giver. He designated us as a giver, and if that giving things become the vision in life, there cannot be anything better than this, bigger than this. और सच्चाई ये है कि हम दाता को नमन करते हैं, और भगवान के बाद अगर कोई बड़ा दाता जीवन देने में सहायक भी हो सके और वो भी दृष्टि का दाता हो, तो ये कभी उस आदमी से जिसने दुनिया में फूलों का रंग ना देखा हो, उससे अगर हम पूछेंगे खुशी क्या होती है देखने की, आज जो फिलैंथ्रोपिक वर्क हम सब लोग यहाँ कर रहे हैं आई केयर हॉस्पिटल में, मुझे भी इस संस्थान से पिछले लगभग 25 वर्षों से करीब से देखने का मौका मिला है. और आप लोगों ने एक नई जिम्मेदारी, मैं समझता था कि चिकित्सा के माध्यम से कुछ करने का दायरा छोटा हो सकता है. अगर आज डॉक्टर सुशील चौधरी को एक आई केयर सेंटर की मैनेजमेंट का जिम्मा है और उसके थ्रू से 150 किलोमीटर के एरिया में काम कर रहे हैं, इससे पहले मुझे पता है राजस्थान तक हमारी टीमें जाती थी, लेकिन अगर यही विजन के साथ इनको कुछ और बड़ा काम करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, we are sure he will prove to be a better administrator, a better visionary, a better luminary than anybody else. That reform could be the politics, which we say it's a necessary evil. But when this evil has to be with us, how can we avoid politics when we have to have an MLA, when we have to have a member of parliament? The poor Anna Hazare wanted to eradicate. Salute you all. Sir, a big salute to me, sir, for the great job being done, and the team leaders and team members also. I'll always be at your doorstep whenever sir will remember me, or you as a family member will remember me. Sorry for cutting in.